Today we are going to study NMTC Stage 2 paper of 2011 Sub-Junior Final Round. Three of the questions of these paper we have discussed already. So let's begin with the question number 4. This is the paper of NMTC Stage 2 2011. 1 to 3 questions have been already discussed. Now let's proceed with question number 4. Find digit numbers are formed by the 4 different digits A, B, C, D. None of them is 0. Without any repetition of the digits, we have to prove that when the sum of all such numbers divide by the sum of the digits A, B, C, D, then the quotient is divisible by, or the quotient is, when divided by the sum of A, B, C, D, the quotient is 6, 6 and 6. तो हमें बताना है कि इसका quotient 6, 6 और 6 होगा. Now let me repeat the question once again. Find the digit numbers are formed by 4 different digits A, B, C, D. None of them is 0. Without any repetition of digits, prove that when the sum of such numbers divided by the sum of digits A, B, C, D, the quotient is 6, 6, 6, 6, 4 times 6. So let's begin. Let the 4 digit numbers A, B, C, D हमें given है. ठीक. We can arrange these 4 digits in how many types? 4 factorial में हम arrange कर सकते हैं. तो how many types we arrange? 24 types से हम उसको arrange कर सकते हैं. So how many numbers we have formed? 24 4 digit numbers हम इससे बना सकते हैं. ठीक, 4 digit numbers बना सकते हैं. Now इनका sum कितना होगा? Sum of all these numbers are 1, 1, 1, 1 in bracket A plus B plus C plus D into 6. ठीक, ये इनका sum होगा. हमसे क्या बोला है? Sum upon A plus B plus C plus D, यही करना है. ठीक, अब sum क्या हो गया? Sum हो गया 1, 1, 1, 1 into A plus B plus C plus D into 6 upon A plus B plus C plus D. So अगर हम ध्यान से देखें तो ये A plus B plus C plus D और ये नीचे वाला कैंसिल होकर क्या बचेगा? 1, 1, 1, 1 into 6, which comes out as 6, 6, 6 and 6. So this is the answer. The question come out as 6, 6, 6 and 6. Now let's proceed with the other question. Question number 5 is ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Through C, a straight line is drawn outside the parallelogram. Through C, a straight line is drawn outside the parallelogram. So AP, BQ and DR are drawn perpendicular to this line from A, B, D. Prove that AP is equals to BQ plus DR. So let's do the next question. A, B, C, D is a parallelogram. ये हमें given है. ABCD parallelogram है. Through C, a straight line is drawn. To C, a straight line is drawn. C से हम एक straight line draw करेंगे. AP, BQ and DR are drawn. AP, BQ and DR are perpendicular to this line from A, B and D. हमें prove करना है AP is equals to BQ plus DR.
types of questions, what we do first, we make the diagram. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे. So according to the diagram, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे. एक पैरेललोग्राम हम बनाएंगे according to the diagram. ये पैरेललोग्राम हमारा. तीसरी लाइन का सकते हैं किस तरीके से कि dr इस लाइन के परपेंडिकुलर है, dr परपेंडिकुलर है और AP भी परपेंडिकुलर हो, AP परपेंडिकुलर है एंड BQ भी परपेंडिकुलर है, BQ भी परपेंडिकुलर. ठीक, हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है कि dr AP एंड BQ परपेंडिकुलर. ना इसके बाद हम एक बार नंबरिंग कर दें ताकि हमारे कुछ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसमें दिक्कत ना आए. ये वाला जो एंगल है 3 मानेंगे और जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको मानेंगे एंगल 4 बन रहा है. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ड्रॉ DS परपेंडिकुलर टू AP. हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे DS जो कि परपेंडिकुलर हो AP से. हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन DS जो कि परपेंडिकुलर हो AP के. तो हम कह सकते हैं DRPS इज अ रेक्टेंगल. ये एक रेक्टेंगल है. कैसे, क्योंकि इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं और साइड्स अपोजिट साइड्स ओपन है, इसलिए हम कह सकते हैं DRPS जो है वो एक रेक्टेंगल है. अब DRPS अगर रेक्टेंगल हो गया हम क्या कह सकते हैं, SP इज इक्वल टू DR. ठीक ना, क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा? यस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्यों? क्योंकि AB हो जाएगा पैरेलल BC के और ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स. क्या एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा? कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी से. एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा. कैसे? AP जब पैरेलल हो जाएगा BQ के तो क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे? यस. सो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस क्या हम कह सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. अगर हम ये कहते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 तो क्या हम एक और चीज कह सकते हैं, एंगल DSA इज इक्वल टू एंगल CQB. और ये दोनों किसके एंगल 90 डिग्री के इक्वल है. तो अब हम कह सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ AAS triangle SAD is congruent to the triangle QBC. क्योंकि हमारे पास SAD एंड QBC में दो एंगल्स और एक साइड इक्वल आ चुकी है. ठीक, अब अगर हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल इक्वल आ चुका है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और फिर हम लिख सकते हैं बाय CPCT AS is equals to QB. ठीक, so therefore with the help of these हम डायरेक्टली लिखेंगे AP को हम क्या लिख सकते हैं, AS प्लस SP और AS किसके इक्वल है, QB प्लस SP. और यही तो हमें प्रूव करना था, AS is equals to QB. अब क्या हम SP को DR के इक्वल लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं QB प्लस DR और ये किसके इक्वल है, AP के. एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव. नाउ let's proceed with question number 6. What question number 6 has said to us is question number 6. Question number 6 कह रहा है Falguni puts 12 plastic bags inside another plastic bag. 12 bags inside another bag. ठीक, each of these 12 bags is either empty or contains 12 other plastic bags. Each bag is either empty or contains other plastic bags. Altogether, if 12 bags were non-empty, 12 bags were non-empty. अगर 12 bags non-empty हैं तो find total number of bags. हमें क्या बताना है, total number of bags बताना है.
Let me read out the question once again. Question बोल रहा है फाल्गुनी puts 12 plastic bags inside another plastic bag. इसका मतलब टोटल बैग्स कितने हो गए? टोटल बैग्स कितने हो गए? ऊपरी ऊपरी तौर से एक बैग था, उसके अंदर 12 बैग्स और डाल दिए, तो अभी तक टोटल बैग्स हो गए 30. उसके बाद each of these 12 bags is either empty or contain 12 other plastic bags. ठीक है, या तो each of these bags are either empty or contain 12 other plastic bags. तो हमें बताना है कि find total number of bags अगर 12 bags were non empty. अगर 12 bags non empty हैं, ठीक 12 bags non empty हैं, तो एक जो बाहर वाला बैग है जिसमें अंदर 12 बैग पड़े, एक तो वो भरा हुआ होगा, और जो अंदर 12 बैग्स डाले उसमें से 11 फिल्ड होंगे. ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? 11 into 12 plus 1 plus 1, which comes out as 132 plus 1 plus 1, which comes out as 134. So total number of bags are 134. Let's move with question number 7. Question number 7. Question number 7 कह रहा है A, B, C are the digits of a 3-digit number ABC. 3-digit number ABC की digits है A, B and C. The number got by reversing the digits, also a 3-digit number, is added to ABC and the sum is found to be a square. Find all such 3-digit numbers. ABC digit है the number got by reversing it. 3-digit number got by reversing the digit is added to ABC is added to ABC and the sum is found to be a square number and sum is square number. So find all such numbers. हमें all such numbers find out करना. So according to the question, एक नंबर है A, B, C. क्या इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 100A plus 10B plus C. जब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा? 100C plus 10B plus A. और जब इनको सम करेंगे तो क्या आ रहा है? एक स्क्वायर नंबर आ रहा है, तो उसका सम आएगा 101A plus 20B plus 101C. वो क्या जाएगा? 101A plus C plus 20B. ठीक, अब देखो ये एक है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमसे यही बोला है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, वही नंबर लेने से. ठीक, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 101A plus C plus 20 plus B, 20B is a perfect square. Yes, which is given in the question. Now A plus C having maximum sum is 18, क्योंकि A की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 9, और C की भी कितनी मैक्सिमम हो सकती है? 9. तो A plus C मैक्सिमम 18 हो सकता है इनका सम. ठीक, एंड मिनिमम सम इज 2. मिनिमम इनका सम कितना हो सकता है? 2, क्योंकि A और C नॉट इक्वल्स टू 0 है. ठीक, एंड B हैविंग द वैल्यू फ्रॉम 0 to 9. B की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैल्यू सकती है? 0 से 9 तक, क्योंकि B मिडिल में है, A और C कॉर्नर्स में है. ठीक, नाउ but A plus C cannot have the values 2, 3, 7, 8 and 12, 13, 17 and 18. For this we always get unit digit of 101A plus C plus 20B because a perfect square having no digit 2, 3. ठीक, अब देखो. But A plus C cannot having the values of 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17 and 18. For these values, अगर हमने इनकी values को consider किया, we always get a unit
digit of number as 2, 3, 7, 8, which is not possible. So ये values हो नहीं सकती, ठीक है. So we have to check for other possible values of a plus c and b. So we observe अगर a plus c is equals to 4 होगा और b 4 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 101 a plus c plus 20 b is equals to 484 आ जाएगा. और अगर ये 484 आ गया तो क्या ये स्क्वायर नंबर है? यस, 484 इज अ स्क्वायर नंबर. ये स्क्वायर नंबर है तो हम यही तो बोला था ये स्क्वायर नंबर आना चाहिए. तो उस अकॉर्डिंग अगर हमने वैल्यूज को कंसिडर किया तो a को 1 ले सकते हैं, c को 3 ले लेंगे और b को 4 ले लेंगे. a को 2 ले लेंगे, c को 2 ले लेंगे और b को 4 ले लेंगे तो भी 484 आ जाएगा. a को 3, c को 1 एंड b को 4 ले लेंगे तो भी 484 आ जाएगा. 3 numbers comes out as 143, 224, 143, 224 and 314. 314 ये 3 नंबर्स हमारे पास आएंगे जब हम कंसिडर करेंगे a, b, c की डिफरेंट वैल्यूज. सेकंड केस क्या आएगा? सेकंड केस क्या है कि जब हम ये तो हमारा फर्स्ट केस आ गया जब हमने a प्लस c को 4 और b को 4 कंसिडर कर लिया. सेकंड केस है हमारे पास a प्लस c को हम 5 कंसिडर कर लें और b को हम 6 कंसिडर कर लें. जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास और अलग अलग केस आएंगे. a इज इक्वल्स टू 1 ले लो, c इज इक्वल्स टू 4 ले लो, b इज इक्वल्स टू 6 ले लो, a इज इक्वल्स टू 2 ले लो और c इज इक्वल्स टू 3 ले लो, b इज इक्वल्स टू 6 ले लो. देन अगेन हमारे पास आएगा a इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 6. इसके अलावा हम देखते हैं a इज इक्वल्स टू 4, c is equals to 1 and b is equals to 6. तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स यहाँ से आ गए 4 नंबर्स. ठीक. थर्ड केस हम ले सकते हैं जो कि a प्लस c is equals to 9 हो जाए और b भी क्या हो जाए हमारा 9. इस केस में हमारे पास 8 नंबर्स आएंगे. 8 नंबर्स कैसे आएंगे? a को हमने 1 ले लिया, c को हमने 8 ले लिया, b तो 9 ली थी ऑलरेडी. ठीक. फिर हमने क्या किया a को 2 ले लिया, c को 7 ले लिया, a को 3 ले लिया, c को 6 ले लिया, a को 4 ले लिया, c को 5 ले लिया. अब इनका रिवर्स भी पॉसिबल है. a को 8 और c को 1 ले सकते हैं, a को 7 एंड c को 2 ले सकते हैं. अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने नंबर जाएंगे 8 नंबर. सो टोटल नंबर्स आ जाएंगे 3 प्लस 8 प्लस 4 कम्स आउट एज 15 टोटल नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक. Now, the last question which came in MTC paper is last question जो आया था हमारे पास वो आया था 9 squares are arranged to form a rectangle ABCD. The smallest square B has an area of 4. Find the areas of Q and R. इस तरीके से एक स्क्वायर फॉर्म में दिया है. यहाँ पे जो है वो Q है, यहाँ का जो पार्ट है वो Q है और ये वाला जो पार्ट है इसका नाम दे रखा है E और इसको आगे एक्सटेंड कर रखा है. इसी से पार्ट का नाम दे रखा है P और ये जो इनका एक्सटेंडेड पोर्शन है इसको नाम दे रखा है D. ये वाला है हमारे पास C. P को अगर आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ये आ जाएगा B. ये है A. तो A B C D E F R Q. ठीक. अब इसकी नेमिंग कर रखी है किस अकॉर्डिंग A B C D. इसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग कर रखी है. हमसे बोला है P का एरिया कितना है? P का एरिया हमसे बोला है 4 स्क्वायर यूनिट्स P का एरिया है. सो फाइंड द एरिया ऑफ Q और R. Q और R का एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक. जब P का एरिया
4 है, तो क्या हम लिख सकते हैं पी का एरिया अगर 4 है तो 2 2 2 2 ये ऐसे होगा। अगर ये 2 होगा और हमने इसको इस लेंथ को हमने a मान लिया, लेट्स सपोज हमने माना, लेट्स डू द मार्किंग व्हेनेवर रिक्वायर्ड व्हेरेवर, सो इसको हम बोलते हैं एल के जी। अभी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो हम मार्क करेंगे इस वाले एरिया को, हमने लेट्स सपोज दिया ये ए, ठीक, ये वाला हो गया ए, ये पूरा लेंथ हो गई ए, अगर ये ए है तो ये बचा हुआ ए माइनस 2 हो जाएगा, ठीक, और ये ए माइनस 2 है, ठीक, ये ए माइनस 2, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ए माइनस 4, ठीक, ये ए माइनस 4 कैसे हुआ, क्योंकि ये पूरा, ये वाला नीचे वाला ए है तो ये भी ए होगा, ठीक, ये ए होगा तो इसमें से कैंसिल होकर ये ए माइनस 2 बच जाएगा, ये ए माइनस 2 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ए माइनस 2 आना चाहिए तो ये ए माइनस 4 हो जाएगा, ठीक, ना ये कितना हो जाएगा, ये ए है, ए प्लस 2 हो गया तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ए प्लस 2, तो ये हो गया ए प्लस 2, जब ये ए प्लस 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा ए माइनस 4 है, तो ये छोटी सी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये छोटी सी लेंथ हमारी हो जाएगी 8, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी, ये लेंथ 8 कैसे हुई, क्योंकि a प्लस 4 माइनस 4, a प्लस 4 माइनस a प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, a प्लस 4 माइनस a प्लस 4 से 8 हो जाएगा, ये 8 है तो ये हो जाएगा a प्लस 4, अब ये a प्लस 4 है तो ये a प्लस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, a प्लस 12, इज दिस क्लियर, तो ये हो जाएगा a प्लस 12, एक बार आगे देखते हैं, ये छोटा वाला 2 था तो ये चारों 2 हो गए, इसको हमने a माना, ये a है तो ये कितना हो जाएगा a माइनस 2, ये a माइनस 2 है तो स्क्वायर की लेंथ हो जाएगी a माइनस 2, तो ये वाला कितना हो जाएगा a 2 है तो क्या करेंगे a माइनस 2 जाए a माइनस 4, जब ये a माइनस 4 हो गया तो ये जो q वाला स्क्वायर है इसकी साइड कितनी होगी, a प्लस 4 माइनस a प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8, ये 8 है तो ये चारों 8 हो जाएंगे, और ये 8 है तो ये वाला a प्लस 4, a प्लस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा a प्लस 12, ये a प्लस 12 है तो सारे a प्लस 12 हो जाएंगे। नाउ side of the square, side of the square b is equals to 2 and side of the square b is equals to a, side of the square a is equals to a plus 2 and side of the square e is equals to a plus 4, side of the square d is equals to a minus 2, ठीक है, तो अब जब अगर ये आ गया तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर क्यू, साइड ऑफ द स्क्वायर क्यू को हम क्या मानेंगे, हमने माना, लेट्स सपोज हम इन पॉइंट्स की मार्किंग कर देते हैं एक्स वाई जेड से, अगर हमने इनकी एक्स वाई जेड से मार्किंग कर दी तो ये हो जाएगा 8 वाली लाइन, क्यू वाली हो जाएगा, ये एक हो जाएगा एक्स, नीचे वाली लाइन पे हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे वाई, और z हम मार्किंग करेंगे यहाँ ऊपर, ठीक है, अब हम बोल सकते हैं एक्स वाई कितना होगा हमारा, एक्स वाई a माइनस 2 कम्स आउट एज a माइनस 4, z एक्स कितना होगा a प्लस 4 माइनस a माइनस 4 विच कम्स आउट एज 8, और ये क्या है साइड ऑफ द स्क्वायर क्यू, ये साइड ऑफ द स्क्वायर क्यू है, ठीक, तो अब हम कह सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्यू, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्यू कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 8 स्क्वायर कम्स आउट एज 16, और साइड एफ कैसे निकालेंगे, साइड एफ बताओ, साइड एफ हो जाएगा हमारा a प्लस 4 प्लस 8 कम्स आउट एज a प्लस 4 प्लस 8 कम्स आउट एज a प्लस 12, ठीक, तो साइड एफ आ गई, अब साइड आर कैसे निकालेंगे, साइड आर निकालने के लिए a प्लस 12 प्लस 8 कम्स आउट एज a प्लस 20, ठीक, अब हमें पता है आई जे हमने मार्क किया था, हमने आई जे मार्क किया था,
लेट्स सी, एक बार ऊपर चलते हैं कि आई कहाँ पर है। हमने आई मार्क नहीं किया था, लेट्स टेक दिस एज आई। तो आई जे के एल हम मार्क कर चुके हैं, ठीक। लेट्स सपोज ये भी हमारा के होगा, इसको हम के माने। तो आई जे हमारा कितना हो जाएगा, आई जे हमारा हो जाएगा a minus 2 minus 8 comes out as a minus 10। अब हमसे बोला है j k is equals to j l, j k is equals to j l, तो कितना हो जाएगा a minus 2 plus 2, a minus 2 plus a comes out as a minus 2 plus a comes out as 2a minus 2 of side of r। हम क्या लिख सकते हैं, a minus 10 plus 2a minus 2 which is comes out as 3a minus 12। तो अब हमें साइड ऑफ r दो तरीके से आ गई, एक यहाँ से और एक यहाँ से हमने निकाली थी। तो हम लिख सकते हैं 3a minus 12 is equals to a plus 20। तो 2 आ जाएगा 32 के इक्वल, तो a किसके इक्वल आ जाएगा 16 के, ठीक। अब हमें पता है साइड ऑफ r कितनी थी, a plus 20, ये कितनी आ गई 16 plus 20 comes out as 36। So area कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर which is comes out as 1296। तो हमें निकाला था एरिया ऑफ क्यू एंड एरिया ऑफ आर। तो क्यू का एरिया ऑलरेडी निकल चुका है 64 और एरिया ऑफ आर आ जाएगा 1296।